ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خیر کے کام کے لیے ایک دوسرے کی فکر کو لے کر کے ملی کام کے لیے آپس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں اپنا کسی کا ذاتی کوئی کام نہیں ہے، بیان کرنا مقصد نہیں ہے، نہ بیان سننے کے لیے یہاں آنا مقصد ہے۔ یہ بیان سننا ہوتا تو اپنی اپنی مسجد میں سن لیتے ہیں لوگ۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم سب بیٹھیں اور ہمارا جو ٹرسٹ چل رہا ہے گاؤں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، گاؤں اطراف کے لیے، اور گاؤں کے لوگ ہی اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں، اور اس کا انتظام بھی گاؤں کے لوگ زیادہ تر کر رہے ہیں۔ آپسی تعاون سے دھراواں ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اس نام سے۔ ایجوکیشنل کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی فکر، ویلفیئر کے معنی آتے ہیں، اینڈ کے معنی اور، ویلفیئر کے معنی آتے ہیں رفاہی کام، کوئی بیمار ہو گیا علاج کرانا، کہیں مصیبت آ گئی کسی کے ساتھ، کسی بھی طریقے کی کوئی مصیبت آ گئی اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ رفاہی کام میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، بہت وسیع ہے، اور ایجوکیشنل میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں، بہت وسیع ہے۔ اسی موضوع پہ مختصر سی بات کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ہمارے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ 100-200 روپے دیتے ہیں یا نہیں بھی دیتے، لیکن تھک جاتے ہیں کہ اکیلے کہاں تک کریں گے، کیسے کریں گے، کب تک کریں گے، کتنا کریں گے، بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جیسے خیر کا کام کرنا ہو اور اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا رے بھائی اکیلے نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے، لیکن جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا ہے، لیکن اپنے کرنے کے تو ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم 100 کے لائق ہیں تو 100 تو کریں۔ اب پتہ لگے کہ 10-20 لاکھ وہاں لگے گا، ہم کیسے کریں گے؟ ارے بھائی 100 کے لائق ہیں، ہم 100 کریں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کی فکر کریں۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، جو نہیں ہو سکتا اس کے لیے اللہ پر چھوڑ دیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا اور مکلف نہیں بنایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بڑا تعاون کریں۔ تو
یہ ایک مشن ہے, ایک تحریک ہے جو چلائی گئی, الحمدللہ چل رہی ہے. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی اکیلے ہی ایک تحریک کو چلاتا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تو ایسے تھوڑی یونیورسٹی بن گئی. ایک مسجد تھی, مسجد میں مکتب کھلا, مکتب سے تھوڑا اور بڑھا, اور شاید کہ سر سید صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے وقت میں انٹر کالج ہی شاید تھا, یونیورسٹی تھوڑی تھی. ان کی تحریک تھی, ان کی فکر تھی. آدمی کی فکر اور تحریک پر نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہی زمانے میں سب کچھ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. ہم درخت لگائیں اور پھل بھی ہم ہی توڑ لیں اور اس کی لکڑی ہو جائے تو بعد میں جب سوکھنے لگے لکڑی بھی ہم ہی جلا لیں, تو ایسا کیسے ہوگا؟ جتنا جو ہے دور اندیشی ہوگی, جتنا دور کی سوچ ہوگی, جن قوموں نے دور اندیشی سے کام لیا وہ بہت کامیاب ہوئے. ہم پھل لگائیں گے, تیسری نسل ہماری توڑے گی, ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے. آر ایس ایس نے محنت کی اور وہ اپنے کام جائز یا ناجائز, غلط یا صحیح وہ الگ بحث ہے, لیکن اپنے محنت میں وہ مخلص رہے اور جھولا لے کر محنت کی, اس کا نتیجہ آج ان کو مل رہا ہے. سمجھ میں؟ جن لوگوں نے جیسی محنت کی وہ اپنے کام میں بہت مخلص رہے اور محنت کی, اس کا نتیجہ ملا. کہ کوئی بھی کام اب ہم ہی لوگ کیے, مولانا مراد صاحب کر رہے ہیں, مولانا طفیل صاحب کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اس لیے کہ وہ ہمارے کام سے نہیں, کام کیوں انہوں نے کر لیا اور کیوں اچھی گاڑی سے چل رہے ہیں, کیوں اچھا کھا پہن رہے, اس کی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ادارہ قائم کر لیا اور ادارہ سے 300 بچیاں 400 بچیاں ہمارے ہی گاؤں کی جا کے کم پیسے میں یا غریب ہیں تو بغیر پیسے کے پڑھ رہی ہیں, اور کسی انداز سے وہ انٹر, ہائی اسکول, عالمہ, پردے کے ساتھ, ایمان کی حفاظت کے ساتھ, عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا, کسی نے نہیں کیا, کسی بھی درجے میں کیا. ہم مر جائیں گے تو مدرسہ میرے ساتھ تھوڑی چلا جائے گا, وہ کام تو بڑھتا رہے گا. ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی آئے ایسا یونیورسٹی بنا دے اس کو, کوئی اور آئے کچھ بھی بنا دے اس کو, بناتا چلا جائے. کام پہ غور و فکر کرنا چاہیے. کام کیا ہوا؟ ہم سے بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. ابھی آپ چلے جائیے کوڑے بہار کی طرف, آپ چلے جائیے بارہ منکی کے پورے, مجھ سے زیادہ یو پی میں شاید کم لوگوں نے سفر کیا ہوگا, پورے یو پی میں نے سفر کیا. گاؤں گاؤں, قصبات, ایک ایک قصبہ مسلمانوں کا ایسا جہاں 20 25 50 ہزار کی آبادی ہے, ایک بھی انٹر کالج مسلمانوں کا نہیں ہے. یا تو ہم اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں, یا تو غیروں کے کالج میں آر ایس ایس اور جو ہے ٹھاکر پنڈتوں کے کالجوں میں اپنی بچیوں کو بھیجیں, ان کی عزتوں کو لٹوائیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ آپ ادھر ہی چلے جائیے, کس طرف آپ سلطان پور ایک ضلع کے بعد پورے ملک کی بات لیجئے, ہم اپنے ضلع ہی میں دیکھ لیں, بہت سے علاقے ایسے ہیں ہماری رشتہ داریاں, ان کے ہاں ایسا کوئی اسکول نہیں جہاں ہم اپنی بچی کو دین و دنیا دونوں سکھا دیں. اگر ہم لوگوں نے کیا, ہم کس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا دلر بھائی اور لڈو بھیا اور جن لوگوں نے کیا کیا, کیا لے رہے ہیں, اپنا کیا کر رہے ہیں اس کمیٹی کے ذریعے؟ اگر ہم لوگوں نے, مولانا مراد نے, ان لوگوں نے, سب لوگوں نے مل کے کیا, کسی سے تو نہیں کہا, کم از کم اچھی نگاہ سے دیکھ تو لیں, دل سے دعا تو دے دیں. یہ نگاہ میں مثبت سوچ جو ہے اپنی مثبت بنائیں, ہم منفی نہ بنائیں کہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں, ارے ان کا نام ہو جا رہا ہے. یہاں بھی راجنیتی لے آتے ہیں, بڑا مسئلہ ہے. ارے بھائی یہ ٹرسٹ ہے, سب کے پیسے سے ہے, کوئی کرے گا نا, کوئی ایک قربانی تو دے گا, تبھی تو کام آگے بڑھے گا. کوئی راجنیتک منچ تو ہے نہیں. کوئی اسی ٹرسٹ کے اندر 10 لوگ ہیں ذمہ دار, مثال کے طور پر ہم مثال دے رہے ہیں, 10 لوگ ذمہ دار ہیں. 10 لوگ الگ الگ نظریے کے ہیں, الگ الگ خاندان کے ہیں, الگ الگ پوروے پاہی اور پٹی کے ہیں, الگ الگ پارٹی کے ہیں, گاؤں لیول پہ رہے نا, کیا دقت ہے اس میں؟ سب بھائی تو ہیں آپس میں. سیاسی نظریہ اپنا اپنا ہو, لیکن ملی نظریے, ملی معاملے میں سب ایک ہو کر کے کام کو آگے بڑھائیں. ملی معاملے میں ایک ہو کر کے
काम को आगे बढ़ाएं। अभी मैं काफी दिनों से इस मौजू पर बात कर रहा हूं, नस्लों को सुधारना। सुल्तानपुर शहर के अंदर कई मस्जिदों में कई जुमे को मेरा बयान इस मौजू पे हुआ। 10 साल पहले मुल्क के जो हालात थे आज नहीं है, और 10 साल बाद जो हालात आज हैं वो नहीं रहेंगे, जान लीजिए। हो सकता है, खुदा न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो कि 10-20 साल बाद सारे मदारिस बंद कर दिए जाएं, मस्जिदों में ताले तक लग जाएं। क्या करेंगे आप? तो दीन की हिफाजत कैसे करेंगे? कैसे मिल्लत की हिफाजत करेंगे? इसको नहीं सोचा। जो चीज 10 साल 12 साल 15 साल पहले सोच नहीं सकते थे वो हुआ है कि नहीं हुआ, और जो आज नहीं सोच सकते 10-20 साल बाद वो भी मुमकिन है कि हो जाए। अल्लाह न करे ऐसा। हम किस गफलत में हैं? काम नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को खुद नहीं बदलते जिस कौम को अपनी हालत के बदलने की खुद फिक्र कोशिश ना हो। जो अपने हालात को बदलने की फिक्र ही ना करे, कोशिश ही ना करे, वो क्या बदलेंगे? अभी इसी मौजू पर बार बार कि नस्लों को सुधारना, तो दीन कैसे बचेगा, मिल्लत कैसे बचेगी, मेरा वजूद कैसे बचेगा? हो सकता है हम सबके मदरसे, हम सबके स्कूल सब खत्म कर दिए जाए, क्या करेंगे? क्या दीन नहीं बचाएंगे? आप तारीख उठाकर हम आप देखें, रशिया के अंदर देखें, जिन ममालिक में ऐसे ऐसे हालात हैं कि मस्जिदों में म्यूजिक बजी, सारे इबादत गाहें, सारी जो है दीन और तबलीग के सारे रास्ते, मिल्लत के सारे मामला सबको खत्म कर दिया गया। तो वहां दीन नहीं बचा, वहां भी दीन बचा है। लोगों ने ऊपर से शराब खाने बना दिए, बज़ाहिर शराबों की ढेर लगा दिया कि शराब है और ये है वो है। अंदर 6-6 महीने के राशन लेकर तहखाना खोद खोद करके उसमें जाकर के 6-6 महीना उस्ताद और शागिर्द अंदर चले गए, कुरान सिखा रहे हैं। वहां ऐसे ऐसे कब्रों को, गढ़ों को खोद खोद कर वहां कुरान की हिफाजत की, दीन की हिफाजत की। सोवियत यूनियन जो रशिया जिससे टुकड़े कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सब जितने टुकड़े हुए हैं, बुखारा और समरकंद उसी इलाके में है। वहां बाद में ऐसे हालात है, जब आजादी मिली तो कुछ लोग ऐसे रहे, कुछ औरतें ऐसी रही, कुरान मुकम्मल याद है और कुरान ले जाके रख दो तो पहचान भी नहीं पा रही है क्या है। इसका मतलब है कि ना कुरान पढ़ाने वाले के पास था, ना कुरान पढ़ने वाले के पास था। पढ़ाने वाले ने भी जुबानी पढ़ाया था, पढ़ने वाले ने भी जुबानी पढ़ा था। पढ़ नहीं पा रहे थे देख के, लेकिन जुबानी सब सुना दे रहे थे। दीन की हिफाजत अल्लाह का जो है होगी, और दीन की हिफाजत के जैसे हालात आते हैं वैसे अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को खड़ा भी कर देते हैं, पैदा भी कर देते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो मुर्दा लोग होते हैं, अल्लाह उनको खत्म भी कर देते हैं, भी जान लीजिए। फैसले भी हो जाते हैं उनके लिए। कोई ये सोचे कि मेरे रहमो करम पर सब हो रहा है, 10-5 हम चंदा दे रहे, भी चंदा दे रहे हैं, दिया किसने है जिसका चंदा हम दे रहे हैं? हम लेकर आए थे यहाँ पे। कितने लोग तो ऐसे आए थे शायद खाने का नहीं था घर में यहाँ पे। और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक ताला फिर वैसे कर दें, बगैर खाए चले जाए। मान ले खुदा न खास्ता यही फसाद हो गया, सब खत्म हो गया, क्या करेंगे? हमारा अपना है कोई चीज दी हुई जात, सब दी हुई जात अल्लाह की, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो काम करें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो दे रहे हैं सब दिया हुआ अल्लाह के, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं जगह जगह यही बयान किया कि भाई कैसे होगा, ऐसे भी हालात आएंगे, ऐसे भी हालात आएंगे। हर माँ बाप को उस्ताद और हर बच्चे को शागिर्द बनना पड़ेगा, और हर घर को मकतब बनाना पड़ेगा। कितना मकतब गिराएंगे वो? अगर हम मामूल बना ले अपने बच्चों को खुद कुरान पढ़ने पढ़ाने का, तो इसका मतलब खुद पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे। तो कोई दीन खत्म कर सकता है? कुरान की तालीम, दीनी तालीम कोई हटा? अरे भाई हर घर में पढ़ाई होने लगेगी, हर घर में सुबह पढ़ाई होने लगेगी, कोई खत्म कर सकता है दीन? कौन मिटा सकता है? कुरान हर सीने में महफूज हो गया, किताब जला दो ना, कागज जलाओगे, सीधा थोड़ी निकाल के चाक कर दोगे। इसीलिए तो अंग्रेज के दौर में जो हुआ था, तो सुना जो किसी ने जो है बताया कि ऐसे ऐसे कुरान एक किताब है मुसलमानों की और उसके जरिए से ऐसा होता है। तो क्या कहा उस दौर की जो रानी थी, मलिका थी, उसने क्या कहा, जितना कुरान हो सब जला दो। कई लाख की तादाद में जला दिया गया। बाद में कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, और किसी तरीके में तक मैसेज पहुंचाया, कह रहे सुन लो, कुरान
कागज का नाम नहीं है। कागज जलाने से दीन नहीं मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। लाखों करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान है, वो कहां जलाओगी? ये कुरान का मौजज़ा है। तो कहने का मतलब यह, कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत मैंने की है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। गोया कि इस उम्मत के सिलसिले में कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जो फरमाया वो खैर उम्मत का। खैर उम्मत वो होगा जो अपनी फिक्र सिर्फ नहीं करेगा, अपने साथ हमेशा ऐसा अपनी जात को बना ले कि दूसरों के लिए फायदा ही पहुंचाए। बाज दरख्त ऐसे होते हैं जड़ी बूटियों की, जिनकी जड़ भी फायदा करती है, जिनकी पत्ती भी फायदा करती है, उनका फूल भी फायदा करता है, उनका फल भी फायदा करता है, और लगी हुई जिस जगह पे उसकी मिट्टी भी फायदा करती है। हम ऐसा बने। इसका मतलब क्या है? इस कुरान मजीद की आयत करीमा का मतलब यह है, एक ईमान वाला हो तो वो खैर उम्मत है। और खैर उम्मत का मकसद क्या है? उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने खैर उम्मत बनाया है इसलिए कि लोगों को नफा पहुंचाने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब हम लोगों को नफा पहुंचाने के बजाय हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। अब किसी को हमारे फायदे से नुकसान महसूस हो, बात अलग है। बात लोगों को नुकसान जबरदस्ती महसूस होता है, उसका इलाज नहीं। लेकिन नुकसान जानबूझ के हम किसी को पहुंचाने लगे तो हम खैर उम्मत में नहीं है। 150 रुपए हम अपनी कमेटी को दे दिए तो कतरा कतरा दरिया गर्दद, कतरा कतरा दरिया गर्दद। एक एक कतरा देने से, एक एक कतरा जमा करने से किसी को कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन जहां जमा होगा वो बहुत हो जाएगा। अब देखते देखते देखिए, अभी कमेटी, इतनी खुशी हो रही है कि कमेटी में जब से कमेटी बनी है 4,29,967 रुपए काम हुआ है। नहीं, लोगों का ताउन किया गया। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ताउन किया गया, उनका घर बिकने से बच गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जेवर बिकने से बच गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके खेत गिरवी रखने से बच गया। उसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये 4,29,967 रुपए किसी एक को कह दिया जाए, क्या करेगा? देने वाले का घर बिक जाएगा। क्या होगा? बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? अब इसमें से जो मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही, जो लोग गांव के लोग सुनेंगे, उन लोगों को भी अपना मुहासबा करना है कि अगर 100-200 रुपए दिए हैं तो किसके खजाने में कमी आ गई? कभी एहसास हुआ कि हमने यहां दे दिया था, वरना हम ये खरीद लेते, ये बिल्डिंग भी खरीद लेते, किस्त अदा कर लेते, एक गाड़ी और बना लेते। लेकिन एक तो ट्रस्ट बन गया, हर महीना 100 रुपया वहां देना पड़ता है, बड़ा मसला है कोई ऐसा? किसी को लगता है उतना तो हम बैठते हैं हंसी मजाक में, हा हू में चाय पी जाते हैं। एक मजलिस में बैठ करके हम पान खा जाते हैं, चाय पी लेते हैं। हम लोगों का मामला, हमको एहसास है। अभी एक जगह बैठ जाते हैं, 100-150 की चाय होती है, एहसास नहीं होता आदमी को। महीने में 100 रुपया खैर के काम के लिए हम देते हैं, बोझ महसूस होता है। ये गफलत का नतीजा है। अगर देने का करें हम, इतना बेहतरीन मौका, हम अलग से जाते, सोचते कि किसका तामुन करें, जो बीमार है उसको कैसे मदद पहुंचाएं। करने वालों ने कर दिया, वो कह भी नहीं रहा कि आप दौड़ो लेकर के झोला और परेशान हो। खाली भाई ये है, आप मीटिंग में महीना 2 महीने में एक दिन टाइम दे दो, 2 घंटा 3 घंटे के लिए, वहीं से 100-200 जो हो सके आप ताउन कर दो। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म और क्या होगा? करने वाले तो अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मसला यह है, असल में हमारी तरक्की, हमारी तनज़्ज़ुली जो गिरावट है, इसकी वजह क्या है? मैं बिलखुसूस अपने गांव के लोगों को कहता हूं। हमारे गांव के लोगों में यह मामला यह है, हम भी शामिल है उसमें, कि किसी की तरक्की किसी को पसंद नहीं। हसद का मादा बहुत ज्यादा है, जलनखोरी का मादा बहुत ज्यादा है। अगर गाड़ी भी पॉलिश करा के थोड़ा चमक उमक के कपड़ा सफेद पहने, देखा,
इतनी गंदी सोच, नेगेटिव सोच, माइनस की तरफ सोच। और यहां क्या है, आप गुजरातियों के यहां चले जाइए, मारवाड़ियों के यहां चले जाइए, मेमन को देख लीजिए, मजाल है आपको दे देंगे, एक दुकान भी बनवाएंगे तो हम लोगों के यहां फुलाने को दे देंगे, अपने गांव को नहीं देंगे। और उनका मामला है कि अपने ही को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। उनकी तरक्की दूर ना जाइए, आजमगढ़ के भाइयों को देख लीजिए। हम इस वक्त सब चीजों पर गौर करते हैं, रिसर्च करते हैं। एक आजमगढ़ क्या है, अच्छी खसलत, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, अच्छी आदत है, आप भी करेंगे, आप भी आगे जाएंगे। एक आजमगढ़ का पहले वो आजमगढ़ वालों को मौका देगा, बाद में किसी को। आप गौर करके यही देख लीजिए, मुंबई में दिमाग लगा लीजिए, राजनीति में भी एतबार से दिखा लीजिए। बड़ी राजनीति में आजमगढ़ वाला अगर कोई है तो बड़ी राजनीति अपने ही को लाएगा, दूसरे को नहीं लाए, छोटी मोटी दे देगा, इसलिए वोट लेना आपसे। हम तो बहुत खरीखर बोलते हैं, बात समझ में आई। अब कहीं के भी देख लीजिए, किसी एक को मैं तो किसी एक को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अपनापन नहीं, किसी के पास दौलत आगे लग रहा है, यही लेकर आए हैं ऊपर से, और ये सब लेकर जाएंगे। अपना कमाल है, हमने बनाया, देने वाली जात अल्लाह की है। बहुत आए और करोड़पति रहे, और यही भिखारी थे, करोड़पति हुए, फिर भिखारी बने। हम में से हम भी हो सकते हैं। हमारे पास भी नहीं था, है, नहीं रहेगा, अल्लाह को मर्जी है। कब अल्लाह ताला छीन ले, कब दे दे, सब अल्लाह का काम, सब अल्लाह का दिया हुआ। सारी चीजें आपके पास जो चीजें हैं वो आपका अपना कमाल नहीं है, सब दी हुई जात अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की। उसको अल्लाह का समझेंगे तो उसका शुक्र अदा करेंगे, और अपना समझेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग होते हैं, कौमी लोग होते हैं, उनके अंदर कौमियत होती है, तो वो खुद मदद भी करते हैं और वक्त भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, वो तो बहुत आला दर्जे के लोग। अब जो कमेटी में वक्त भी दे रहे हैं, ताउन भी दे रहे हैं, दौड़ धूप भी कर रहे हैं, उस दौड़ धूप का खर्च भी अपने जेब से लगा रहे हैं, वो बहुत आला दर्जे के लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वैसे बन जाएंगे, इसलिए कि सब नहीं बन सकते। लेकिन हां, ये कर सकते, ऐसे करने वालों की टांग न खींच करके ऐसे करने वालों का ताउन करें, ऐसे करने वालों का ताउन करें। अभी किसी एक से मैंने बताया ना, किसी एक से कह दिया जाए कि 4 लाख 4.5 लाख किसी एक की मदद कर दी जाए, कर पाएगा? और 100 रुपया हमारा मदद में शामिल है, 200 हमारा शामिल है, हमको पता ही नहीं लगा, इसलिए कि 100-200 तो यहां से आने जाने किराया हो गया। रोज का आदमी जेब खर्च 200 मानता है कि रोज का रोजाना ये चाय का हमारा खर्च है 100 रुपए 200 रुपए, कुछ है ही नहीं। इसलिए कौमों को आगे बढ़ना है तो खैर उम्मत बनना पड़ेगा। यही हमने बार बार जगह जगह ये बयान किया कि कहीं से कुछ किसी भी तरीके पर कौमी फिक्र रख लें। खैर उम्मत का मतलब ही यही है कि हम ऐसे दरख्त बन जाएं, ऐसे पेड़ पौधे बन जाएं जिसकी जड़ भी फायदा करती है, जिसकी पत्ती भी फायदा करती है, जिसकी डंठल भी फायदा करती है, जिसका फूल भी, जिसका फल भी, जिसका साया भी, जिसकी जड़ के सोहबत में रहने वाली मिट्टी भी फायदा करती है। हम वो उम्मत बन जाएं। हम निकले किसी रास्ते से तो ये लगे कि हां ये आदमी जा रहा है, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा सिवाय मुझे फायदा के। अब कुछ लोग जबरदस्ती नुकसान समझे तो अलग बात, उनके लिए इलाज नहीं, वो कुछ रहेंगे, सब मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे। कुछ लोग हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारे लोग तो भाई मोहब्बत करते, बहुत सारे लोग खत में गालियां वगैरह भी लिख के भेजते थे। तो हजरत कभी कभी मजलिस में दिखाते कि देखो भाई, अरे भाई आप लोग हजरत और हकीमुल उम्मत और फुलाना धमाका आप लोग कहते हैं, तो मेरा नफ्स फूलता है कभी कभी, मैं भी इंसान हूं, तो अल्लाह ताला मेरा इलाज भी करवा देते हैं। ये देखो गाली लिखी हुई ना, मेरा इलाज करवा देते हैं, उसमें कौन सी बात, ये तो मेरे लिए खैर है। बुजुर्गान दिन क्या कहते, ये भी मेरे लिए खैर है। कभी कभी फूलते हैं हम इंसान हैं, कभी कभी दौलत के नशे में हम होते हैं, गाड़ी के नशे में होते हैं, तो हमारा कोई बुराई करे तो उसको भी खैर ही कर समझना चाहिए, उसको भी हमको खैर समझना है कि भाई ठीक है, वो नहीं समझता है और करने वाले का नुकसान है, इसलिए कि उसकी सोच जब हमेशा उल्टी होगी, नेगेटिव सोच होगी, तो कभी वो तरक्की नहीं कर पाएगा।
آپ خیر بن جائیے نہ بنیے پورے کے لیے نہیں کہ خیر بن کر کے سب کو فیض پہنچائیں، یہ نہیں ہو سکتا. خیر بن کر کے کم از کم اپنے پڑوسیوں کو فیض پہنچائیں، اپنے گاؤں والوں کو پہنچائیں. جس استر سے آپ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، تعاون کر سکتے ہیں طاقت سے، پیسے سے، رائے سے، علم سے، ویسے آپ کریں. یہ خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا معاملہ، تمہارا شیوا، تمہاری خصلت، تمہاری عادت یہ ہونا چاہیے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. اپنا عمل بنا لو، اپنی عادت بنا لو، پھر دیکھیے دوسرے لوگوں، ہم بھی ترقی کریں گے، دوسرا بھی ترقی کرے گا. اس لیے جو ہے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں دو جملے ہیں، ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر. ابھی تک ویلفیئر میں علاج، تو ہمارا خیال ہے کہ علاج میں 90% خرچ ہوا ہے یہ پیسہ، اور 10% خرچ جو ہے رمضان وغیرہ میں کچھ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو بغیر نام بتائے ہوئے ان کے گھروں پر تحقیق کر کے پیسہ دیا گیا ہے، جو مجھے معلوم ہے. یہ 10% ہے، لیکن 90% جو ہے علاج میں خرچ ہوا ہے. واقعی کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں اچانک کسی کے گھر پہ آ جاتے ہیں اور اس کا سب کچھ بکنے کے کگار پہ آ جاتا ہے، زمین گروی رکھنے کے کگار پہ آ جاتی ہے. ہمارے 100 200 کے تعاون سے اگر ایسے لوگ پھر سے آباد ہو گئے، علاج بھی ہو گیا، کتنا بڑا ثواب ملا، کتنا بھی بڑا کام ہوا. ایجوکیشنل پہ کام ابھی اس کمیٹی نے براہ راست نہیں کیا ہے، لیکن وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ ایسے کرتے رہے. ایجوکیشنل میں تو بھئی مان لیجئے ہم لوگ اب اپنے گاؤں میں 10,000 کی آبادی ہے، 2,000 3,000 کی آبادی والے بہت سے آبادیوں میں انٹر کالج ہیں غیروں کے. ہمارے 10,000 کی آبادی میں ایک بھی، اور ہم لوگ شاید ناکام کیے ہوتے اب تک. یہ بھی ہم انٹر کراتے ہیں، مولانا مراد کے یہاں بھی انٹر ہو رہا، ان کے یہاں بھی انٹر ہو رہا. ہم لوگ کسی بھی سسٹم سے ڈگری کالج، انٹر کالج باقاعدہ جو بھی ہو چلاتے ہیں لوگ، وہاں سے سسٹم سے نقاب میں اپنی بچیوں کو ہم پڑھا دے رہے ہیں. اس کا نتیجہ ابھی نہیں 5 سال بعد آئے گا انشاءاللہ. 5 سال بعد دیکھیے گا شاید کوئی گھر ایسے بچے گا جہاں بچیاں گریجویٹ ہوں گی نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا. عزت بھی بچی، دین بھی آیا، نماز بھی سیکھ رہی ہیں، سب کچھ سیکھ رہی ہیں، ساتھ میں بہترین انگلش. ابھی ہماری بچیاں گئیں، پریکٹیکل ہوتا ہے نا، تو جہاں سے ایڈمیشن ہوتا ہے وہاں پریکٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل جو ایگزامنر تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ سب سے بہترین اخلاق اور کردار اور ہر چیز میں یہ بچیاں، غیر مسلم ایگزامنر کیا کہہ رہے، یہ بچیاں جو ہیں یہ اتنا، وہ اس کو کیا معلوم کہاں کی کیا، یہ بچیاں بہت صحیح. اس لیے کہ صرف علم ہی ضروری نہیں ہے، ان کی عزت کے ساتھ علم ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ علم، اخلاق و کردار آئے اور طریقے نبوی بھی ہو. تو ایجوکیشنل میں ہم لوگ اپنے استر سے کام کر رہے ہیں، جتنا کر پا رہے ہیں، جتنا ہماری حیثیت تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہم لوگوں نے کام کیا. اور اپنے کام کے دوران ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے گاؤں کی ترجمانی کر رہے ہیں، چاہے مولانا مراد صاحب ہوں، چاہے مولانا طفیل صاحب ہوں، جو لوگ آپ سب سے محبت کیجئے. اس لیے محبت کا مقصد یہ نہیں کہ میرا تعاون کیجئے، آپ محبت سے دعا دے دیں گے، یہی بڑی بات. یہ جان لیجئے جس انداز سے ہم لوگوں نے کام کیا ہے، شاید کیا نہیں کرنا پڑا ہم لوگوں کو، کتنا دوڑے ہیں. ایک دن میں 500 کلومیٹر تک بائکیں ہم لوگوں نے چلائی، کھان بھوکے پیاسے، لوگوں کو دکھ رہا ہے بنا رہا جی مسئلہ. یہ بھی یہ نیگیٹو سوچ، غلط سوچ یہ بھی ہے. عبداللہ بھائی یا ان کے ہمارے 4-5 لوگ 7 لوگ صدر صاحب ہیں ہمارے، اور لوگ ہیں، سب لوگ تعاون کر رہے ہیں. تو ہماری یہ جو ہے سینئر لوگ ہیں، اس کے بعد جو نیچے لوگ ہیں جونیئر لوگ ہیں، سب کے تعاون سے کمیٹی چل رہی. اب کچھ لوگ ایسے بہروز جو ہے دور سے دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی ان کا الیکشنوں کی راجنیت ہوگی، اس میں فلانا ہوگا. ہوتا ہے. گندی سوچ والے جن کے دماغ میں گندے کیڑے ہیں وہی سوچیں گے، اور کیا سوچیں گے، اور کیا سوچیں گے بھائی. ارے کام دین کا ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. کام نہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو دیکھا، نہ اپنا پریوار دیکھا. بس تحقیق ہو گئی کہ ہمارے علاقے کے ہیں، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، فوراً اعلان نکالا، اور جو بجٹ میں تھا، فنڈ میں تھا وہ دیا، اور پلس الگ سے لا کر کے تعاون کر دیا، کرا دیا. ان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ اپنا سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اللہ کے لیے. اور جو
जितना भी बड़ा ट्रस्ट चला रहा होगा, जितना भी बड़ा मदरसा स्कूल कुछ भी चला रहा होगा, उससे उतना ही ज्यादा अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, उससे उतना ही बड़ा उससे हिसाब किताब होगा, ये भी जानते रहे। हाँ, और वैसे उसको मदद भी खूब मिलेगी, वो दुनिया में भी खूब ताउन होगा उसका, मतलब काम की, और अल्लाह के अजर भी बहुत बड़ा ऐसे लोगों का होगा, अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों का अजर भी बहुत बड़ा होगा। ये ना समझे कि भाई 100 रुपया वाला देने वाला 100 रुपया दे दे रहा, हम भी 100 रुपया दे दे, क्या जरूरत है, क्यों जाए भैया रोजाना, हम पहले आज यहाँ मीटिंग है, भैया तुम चले आओ, भैया तुम चले आओ, और आओ बैठो करो, और हम चले आ रहे हैं, कुछ लोग चले आ रहे हैं, सोचे यार बताओ वो नहीं आ रहे, वो हम ही क्यों आए। तो जो आ रहे हैं उनका बहुत बड़ा अजर होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ने कबूल किया तब हम आए, अल्लाह ने कबूल किया तब हम आए, किसको नसीब है ऐसा काम करना। इसलिए जो है तो एक बेहतरीन काम हो रहा है और आप लोग कर रहे हैं। हम अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, अपने नस्लों को संभालने के लिए, करने के लिए मिल्लत के जो भी काम होंगे वो हम करते रहें जितना हमसे हो सके। इंशाअल्लाह जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि उनको भी एक दिन समझ में आएगा, वो भी जुड़ेंगे, और नहीं भी जुड़ेंगे तो कम से कम दुआ देंगे। हम कह रहे हैं अकेले हमारे एक दो लोगों को करना पड़े तो अकेले कीजिए, इसलिए कि मैंने अभी मिसाल दी ना, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी एक साहब शिकायत की है कि मेरा बच्चा सिगरेट पीता छोड़ ही नहीं रहा है, तो हजरत ने क्या फरमाया कि क्या हुआ फिर, क्या कहते कहते थक गए, छोड़ दिए, कहना ही, बाद लोग होते हैं ना कहते कहते हम थक गए, आजिज आ गए। हजरत ने फरमाया वो तो सिगरेट अभी पी रहा, नहीं छोड़ा। क्या अच्छा, वो गलत काम करने से नहीं थका, आप अच्छा काम करने थक गए, वो गलत काम करने से नहीं थका, आप अच्छा काम करने से थक गए। क्या मतलब, भाई लोग ताउन नहीं कर रहे हैं वो गलत काम है, और आप ताउन कर रहे थे ये अच्छा काम है, तो ताउन ना करने वाले डटे रहे, नहीं कर रहे हैं वो करते रहे, और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दें भाई, हम 100 रुपए से मदद करते रहेंगे, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन काम करते रहेंगे। काम करने वाले हो को अल्लाह तबारक ताला मर्तबा बढ़ा देते हैं, और उसी के मर्तबे को जो है, उसी का रुतबा, उसी का मर्तबा उसी को बढ़ता है। कल जब आदमी निखरता है, आगे बढ़ाता, दुनिया में भी अल्लाह अजर देते हैं। आदमी कह अरे भाई 4 चक्कर चलता है फुलाना, उनकी इब्तदाई जिंदगी को कोई नहीं देखेगा, कितना संघर्ष किया, कितना मुजाहिदा किया, कितना रगड़े हैं, वो नहीं देखा। अब वो दौर आया कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इनाम हुआ, बरकतें हुई, बरकत होती है, जान लीजिए, काम की बरकत है। जिस वक्त इन्होंने शुरू किया होगा, इनसे पूछिए, इनके दुकान का कारोबार उतना नहीं रहा होगा जितना आज हो गया है, और ये और बढ़ेगा अगर ये मुखलिस रहे, आप लोग सदर साहब सब लोग मुखलिस रहे और मेहनत से काम करते रहे। बहुत वक्त ना दीजिए, महीने में 1 दिन दे दीजिए, तो अल्लाह ताला बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब तक हम इसको अल्लाह के लिए करेंगे और अल्लाह का काम समझेंगे, अल्लाह के लिए दूसरों का ताउन करेंगे, इसमें एक जर्रा बराबर भी अपनी किसी नियत, किसी दुनियावी गर्ज की नियत शामिल नहीं होगी। इलेक्शन आने वाला है, इसमें मुख्तलिफ सोच के लोग होंगे, वो अपनी अपनी सोच लेकर बैठे। कमेटी के सिलसिले में बैठक, अगर इस खैर के काम के लिए बैठक हो रही है तो किसी भी हालत में कहीं भी किसी का तस्करा, अपना प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। वो काम अपनी अपनी महफिलों में, यहां से उठ के चले जाएं, बगल कहीं चले जाएं, उनके घर जाएं, जाकर कहें मुझे वोट दे दीजिए, लेकिन कमेटी के उसमें निकलने के बाद रास्ते में भी न कहें मुझे वोट दे दीजिए या मेरे लोगों को वोट दीजिए। जितना आला दर्जे का इखलास होगा, उतना आला दर्जे का अल्लाह तबारक ताला काम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें बरकत होगी, खैर होगा। इन चीजों पर हमको गौर व फिक्र करना है। मैंने जो है कई जुमे को यही बयान किया, जगह जगह इस वक्त में यही मौजू है मेरा कि भाई आप हालात आने पर मदारिस बंद हो जाएंगे तो आप अपने हर घर को मकतब बना दीजिए, और हर घर में हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बैठे एक घंटा, तो खुद भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद नमाज पढ़ेंगे, तभी बच्चों को कहेंगे। इस तरीके पर फिक्र कोशिश करें। मैंने वो बात भी कही कि भाई अपने गांव की अक्सर सोच उल्टी है, वो सोच नहीं होनी चाहिए। सोच में हम बदलाव लाएं और तरक्की करने वालों को देखकर खुश हो, तरक्की करने वालों को देखकर खुश हो, और तरक्की करने वाले उसको अपनी तरक्की ना समझें,
अल्लाह की दी हुई नेमत समझे, अल्लाह की दी हुई नेमत समझे। बाद लोगों को अल्लाह तबारक ताला दे देते हैं तो वो भी गांव वाले बदबू करने लगते हैं। क्या करने हैं? हम एकदम साफे साफ कहते हैं, चाहे जो होगा। बाद लोगों को अल्लाह तबारक ताला 2 पैसा नवाज देते हैं तो अपनी वो पुरानी गूदड़ी और अपनी फाका कशी वाली जिंदगी भूल करके गांव वाले बदबू करने लगते हैं उनको। ऐसी दौलत पर लानत है, ऐसी दौलत पर लानत है जो इस अंदाज की सोच रखते हो। दी हुई जात अल्लाह की है, अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो सब अल्लाह ने दिया और ले भी लेगा अल्लाह, कभी अपना नहीं समझना हमको। तो इंशाअल्लाह हम सब आज अहद करें कि कमेटी के इस काम को अपना काम समझते हुए, खैर का, मिल्लत का काम समझते हुए, हमारी 100 रुपए के ताउन से, हमारे 100 रुपए के ताउन से खैर का काम बढ़ता जाएगा, बढ़ता। अगर हर साल में 50 मरीजों पर 10-10, 20-20 हजार खर्च हुआ तो उन मरीजों की दिलजोई हुई और उनका जेवर और चीज बिकने से, गिरवी रखने से बच गया और हमारा कुछ नहीं गया। तो तरक्की हुई ना किसी न दर्जे में। अब कभी आएंगे तो मेडिकल कैंप लग जाए, कभी आए तो बाकायदा जो है एजुकेशनल कैंप लगे कि भाई कौन कौन से बच्चे वो हैं, किसी भी इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, अगर इतना परसेंटेज आता, मेरी राय है ये, इतना परसेंटेज अगर आता है तो हम अलीगढ़, जामे मिल्लिया वगैरह में उनको करने के लिए वो भरें और उनका जो भी खर्च होगा हम कमेटी की तरफ से उनको देंगे। अगर वो नाम आ गया उनका कंपटीशन में, IAS BCS के कंपटीशन में, अरे 10,000 की आबादी में एक भी डॉक्टर ना हो, हमसे पूछे, हम लोगों को मालूम है इंटर पढ़ाने वाली एक भी बच्ची पूरे गांव में नहीं है, एक भी कोई मैथ पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाले कोई पूरे गांव में नहीं। 10,000 की आबादी में 10 घर के पूर्व में गैर मुस्लिमों के हर घर में मिलता पढ़ाने वाला। क्या हालात है हमारे, इतने खतरनाक हालात। उसके बावजूद काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चढ़ी हुई आंखों से देखा जाता है। ये हालात। तो एक एजुकेशनल पे भी कैंप लगाना है, कैंप ना लगा करके कम से कम ऐसे लोगों को निगाह पे रखना है कि हमारे वो बच्चे, हम जाएंगे खेल कराएंगे तो और खेल की तरफ उनका रुझान जाएगा, अपनी जिंदगी को और बर्बाद करेंगे। अगर हम जाएं और उनको इकट्ठा करें, हम कह रहे हैं 100 बच्चे हैं, 100 ना इकट्ठा हो, 20 इकट्ठा हो जाए, 20 में कहा जाए कि कमेटी की तरफ से ये इनाम रखा गया है कि इस साल किसी भी कॉलेज में इंटर करने वाले शख्स अगर उसका 90% और जो है 85% के ऊपर रिजल्ट आता है तो कमेटी की तरफ से उसको इतना इनाम भी दिया जाएगा। कमेटी की तरफ से उसकी हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया जाएगा। और इनाम अकेले नहीं दिया जाएगा, प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें सारे नौजवानों को बुलाया जाएगा, उनके सामने इनाम रखा जाएगा और कहा जाएगा आगे भी अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हैं और घर से फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है तो हम अलीगढ़, JNU, जामे मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां भी पढ़ना चाहें, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कहीं भी पढ़ना चाहें, आप किसी यूनिवर्सिटी में IAS BCS करना चाहें, आप किसी भी कंपटीशन की जेई इंजीनियर बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आप कंपटीशन में बैठे। अगर कंपटीशन में आप आ जाते हैं तो जो खर्च होगा वो हम करेंगे। हमारे मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर बाद बच्चियां बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नाम नहीं बताएंगे, एक साहब कहने लगे, हाफिज हैं वो, कहने लगे उनकी बच्चियों को बहुत अच्छा रिजल्ट। तो हमने कहा भी मास्टर साहब से, मैंने कहा 1-2 लोगों से कि इन बच्चों को ताउन कीजिए और जो किताबें मिल सकती हूँ किताबें कंपटीशन की दीजिए लाके और इनको कंपटीशन बैठाइए। तो हाफिज साहब कहने लगे हमारे पास ऐसे। हमने कहा आप बेफिक्र हो जाइए, अगर ये बच्चियां कंपटीशन में निकल गई उससे पहले का खर्च और कंपटीशन में आगे तो मैं अपने पास से पूरा खर्च उठाऊंगा इंशाल्लाह, बच्चियों को बढ़ाऊं। ऐसे करिए, तब ये जाकर के इस अंदाज की जमीनी जब मेहनत होगी तब 10 साल के बाद हमारा गांव उठेगा इंशाल्लाह। पूरे सुल्तानपुर जिलों में जितना खां साहिबों के बड़े गांव है, सबसे कम मालियत का गांव सुधराए है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे कम पैसा। सही सर्वे है मेरा कि नहीं है? मेरा मकसद ये नहीं सबके पास पैसा हो जाए, मेरा मकसद ये सोच अच्छी नहीं तभी तो ऐसा हुआ। काम करने वालों की टांग खींची जाती है, काम न किया जाएगा, न करने दिया जाएगा और न करने वालों को दुआ दी जाएगी। इसलिए ये करेंगे इंशाल्लाह, आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। काम कमेटी ने बहुत काम किया, आगे भी करते रहेंगे। और आप सब जो लोग आए हैं सब कमेटी का मेंबर अपने आप को समझें और हर महीना आप अकेले करें और किसी और से ताउन करें।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के जो बानी हैं मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, झोला लेकर चंदा करते थे। क्या किया था? कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी बड़ा स्कूल, हम लोग ताउन कराए है, स्कूल वो चलावता है, फीसियो लेता है, उसके बाद जब चंदो लेते, बड़ा मसला है। कोई ऐसी संस्था बता दीजिए बगैर चंदे की आगे बढ़ी हो। चंदे से आधा खर्च, बगैर फीस से कितना फीस ले लेंगे, कितना क्या हो जाएगा उससे? बिल्डिंग संभालेगा आदमी, तनख्वाह संभालेगा आदमी, कागज दुरुस्त करेगा उसका। मदन मोहन मालवीय ने झोला लेकर के जगह जगह जाकर के चंदा किया। हिस्ट्री उठाकर देखे, मैं तो बहुत नहीं पढ़ा हूं लेकिन सुना हूं। और नवाब हैदराबाद ने और किसने, निजाम हैदराबाद ने, किसने नहीं ताउन किया, तब वो हुआ है, तब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। तो क्या वो चंदा करते रहे होंगे? तो किसी की बात भी तो सुना होगा उन लोगों ने। कुछ लोग तान और तशनी किए होंगे, ताना भी दिए होंगे, थोड़ा सी दिए होंगे, कुछ लोग दिए भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोग कमेटी के लिए अपने अपने क्षेत्र में जो 10-20 गांव के लोग हैं उनको समझाइए, जैसे जमात वाले समझाते हैं कि भाई जो आप रमजान में मदारिस को चंदा देते हैं, वो सब करते हैं, वो करते रहिए। ये 100-200 रुपए आप, लेकिन कमेटी को हर महीना ना भूलिए, 100-200 देना कमेटी को हर महीना ना भूलिए। तो आप अपना 100 रुपया देंगे और 2 लोगों का और दिला देंगे, अपने साथियों का, तो सवाब मिल जाएगा, उसको भी मिलेगा, हमको भी मिल जाएगा। और कमेटी के एक जो है मुतहर्रिक और फ़आल मिंबर बनने का सबूत हम दे देंगे कि हाँ हम फिक्र लिए, फिक्रों से काम होता है, फिक्रों से काम होता है। असबाब तो अल्लाह तबारक ताला फिक्रों पे अता कर देते हैं। जब फिक्र जैसी होती है अल्लाह ताला वैसे असबाब दे देते हैं। बहुत ज्यादा देर बात हो गई। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बात अगर किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ दे लगी हो तो भाई उसके लिए माफी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आपने ज़िंदगी दी है, ईमान दिया है, और ईमान के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रिज़्क़ को कमाने के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए हम सब अपना घर बार छोड़कर दूर दराज का सफ़र किए हुए हैं। ऐ अल्लाह जहाँ हम रहें वहाँ खैर उम्मत बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह लोगों के लिए नफ़ा बख्श और लोग इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाली ज़िंदगी हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह नफ़ा बख्श इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ रहें अपने कौम की, अपने मिल्लत की, दीन की, काम करने वालों की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उल्टी सोच, गलत सोच, मुतकब्बिर वाली सोच, गुरूर और घमंड वाली सोच से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको काम करने के बाद काम पर बड़ाई नहीं, आपका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस खैर को, काम को खूब कबूल फरमा। जो लोग अपना वक्त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, फिक्र लिए हुए हैं, ऐ अल्लाह खूब खूब इनको बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनकी बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस गजा के मुसलमानों की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की, शाम के मुसलमानों की, बर्मा के मुसलमानों की, दुनिया के जिस जिस इलाके में मुसलमानों या किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है,
اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، وہ غدار جن کے ہاتھوں میں اس وقت میں ستہ ہے، وہ سمویدھان پر خطرہ ہے اور سمویدھان کو لوٹنا چاہتے ہیں، ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگ ملک کے دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو آباد فرما اور اس ملک کے اندر ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی ترقیات عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفاء کلی نصیب فرما، ہمارے کمیٹی کے احباب جو لوگ اپنا سب کچھ خرچ لگا رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں پیسے کے ساتھ ساتھ، یا جو لوگ وقت دے رہے ہیں پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، جو لوگ پیسہ وقت دونوں دے رہے ہیں، یا کچھ لوگ صرف پیسہ دے رہے ہیں، اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو خود لگنے کی اور دوسرے لوگوں کو فکر دلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ دیا ہوا ہے، جو کچھ میرا ہے، میرے پاس ہے، سب آپ کا ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، سب تو نے دیا ہے، اور آئندہ رہے گا نہیں رہے گا اس کا بھی مالک تو ہی ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب آقا نامدار تاجدار مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا بہت زیادت نہیں ہوگی